Good morning, student. I am Rajendra Simori from the Gyan Manjari Vidyapith Moa. Again, welcomes back into the class 10. Today we are discussing about the unit number 4, and we are already sending all these things, whatever the removed from this chapter. So we have to move on to the next points that we covered in this quadratic equation. So in this 4.4, just we have to remove over here, that is the completing square method, that is not part and parcel of this year of these points, and up to the examples 12, that is also be not considered here. So we will start from the example number 13 से हम start कर रहे हैं, example 13 से, and then after we go for the next exercise. So already we discussed about the 4.1 and 4.2 both exercises, and now we are going on to the next one exercise. So before going on that, we just telling about that this particular portion is not included, so we have to just complete whatever the contents is, it will ask into the examination. That portion we complete first, and then after we have to go for remains portion, whatever we remains. So because of our aim is to conclude all 100% syllabus, but in our examination that will not ask. So similar way we are going on that points. So first of all, we are using here that quadratic formula. Now the next concept is considered about the quadratic formula, and for the quadratic formula we are using such kinds of the equations like minus b plus or minus under root b square minus 4ac and upon 2a. If we have to find out these kinds of the equations, that is not known as the quadratic formula. This quadratic formula is useful when we have to find out the roots of quadratic equation. From the quadratic equation sometimes we require to find out the roots. अभी तक हम फाइंड रूट्स फाइंड करने की अलग मेथड सीख रहे थे, जैसे कि हमने लास्ट में फैक्टराइजेशन मेथड सीखी. तो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बट नाउ वी आर गोइंग फॉर द quadratic formula. Whatever we have this quadratic formula, and how can we find out the roots? So for that we have to remember this formula, minus b plus or minus under root b square minus 4ac divided by 2a, and it is always be provided like b square minus 4ac is less than, consider is here that b square minus 4ac is greater than or equal to 0. मतलब b square minus 4ac always या तो greater होना चाहिए या तो equal होना चाहिए, तभी हमें उस रूट की फाइंड यानी कि रूट हमें मिल सकता है. समझ में आ रहा है? रूट का मतलब हम देख सकते हैं ना कि जैसे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में हम जीरोस फाइंड करते थे, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम फाइंड कर रहे हैं रूट. और इसके लिए आपको ये फॉर्मूला की हेल्प से भी हम रूट फाइंड कर सकते हैं. और लास्ट टॉपिक आपका नेचर ऑफ रूट्स रहेगा, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करेंगे. तो ये जो चीज है बड़ी इजी चीज है, so we can focus on it. So first of all, this particular formula is useful to find roots of the quadratic equation. This particular formula like minus b plus or minus under root b square minus 4ac, that is a one particular formula that is help us to find out the formula for the roots for the quadratic equation. इक्वेशंस के ऊपर से हम कभी रूट फाइंड करना है तो हम इसके लिए ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, और इसके लिए ये पूरी प्रोसीजर हमें यूज करनी ना पड़े, इसके लिए इट इज ऑल्सो बी प्रोवाइडेड लाइक दैट वे कि हमें पहले से इसका एक मॉड्यूल पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. जब होता तभी हमें रूट्स मिल सकते. ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तब हमें रूट नहीं मिलता. इसके लिए मैंने 3 कंडीशन यहाँ पे लिखी. आज ये भी आप याद रख लेना क्या कि सपोज इफ वी फाइंड आउट द 2 रियल रूट्स, मतलब हमें पता पहले से चल जाता है कि इसके कितने रूट्स है, कितने रियल रूट्स है. तो 2
रियल रूट्स तब भी हो सकता है जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से ग्रेटर जब भी इस इक्वेशंस का आंसर हमें मिलता है, मतलब हम जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें से हमें कंपेयर किसके साथ करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो इसकी हेल्प से हमें a की वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी और c की वैल्यू मिलेगी। वो a, b और c की वैल्यू इसी फॉर्मेशन में हम रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac में, उससे हमें पता चल जाता है उसका आंसर क्या है। यदि वो 0 से बड़ा आया तो कितने रूट हो सकते हैं उसके, 2। यदि 2 इक्वल रूट्स, मतलब हमें कब ऐसा पता चला कि इसके 2 इक्वल रूट ही होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ तीन कंडीशन है वो याद रखनी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, then we have to find out the 2 real roots. If 2 equal roots फाइंड करने के लिए हमारा आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आया, 0 से कम आया, तब हम कोई भी रूट्स उसमें फाइंड कर नहीं सकते, मतलब नेगेटिव का कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac में मतलब रूट नहीं निकलता है। समझ में आ गया ना? तो एक तो ऐसा हुआ कि 0 से ग्रेटर मतलब 0 से ज्यादा कोई भी 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर्स, रियल नंबर्स यहाँ पे होता है, तब हमें 2 रूट्स मिल सकते हैं। इक्वल होगा तो भी इक्वल रूट्स हमें मिलेंगे, और यदि 0 से कम होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन वी कैन से दैट इट हैज नो रियल रूट्स। तो समझ में आ गया ना? ये बड़ी अच्छी चीज है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरह आप याद रखो, इक्वेशंस की तरह याद रखो, या कंडीशन की तरह याद रखो। तीन मेथड्स आप यदि अपनी तरह से याद रखोगे तो दैट इज वेरी वेरी सिंपल। सो लेट अस मूव ऑन दैट पॉइंट्स। हियर द एग्जांपल नंबर 13. Example number 13 is given in your textbook, and you have to go through example 13 because of all the examples before that all are removed from this, because of it is relates with the completing square methods, and completing square method is not included in our syllabus this year. So we have to go in for the example number 13. I will also provide you these kinds of the procedures of the syllabus, and you can also check it out from that. And if you having any kinds of the query, just you have to make it the tick marks in your textbook also, isn't it? So let us move on it. Now 3x square minus 5x plus 2 is there. अब हमें क्या करना है, फाइंड द रूट्स। अभी यहाँ पे हमें रूट्स फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू यूजिंग दिस फॉर्मूला, इक्वेशंस, कंडीशंस, ये सब चीज हम याद रखेंगे। देन आफ्टर वी गो फॉर द एग्जांपल नंबर 13. Is it okay? So take your time and check all these things. So let us move on to the example 13. Find the roots of the following. That kinds of the things is given in example number 13. Now it's very easy. 3x square minus 5x plus 2 is equal to 0. That is given as a quadratic equation. Okay. We compare directly with our standard form of quadratic equation, and that is ax square plus bx plus c. नाउ इसके साथ हम कंपेयर करें तो ऑटोमेटिक वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी रहेगी, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -5 एंड सी इज इक्वल टू कितना रहेगा, 2. इज इट ओके? नाउ वी आर गोइंग फॉर जस्ट वी चेक इट आउट द बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब ये वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b का स्क्वायर क्या है, b मतलब -5 का स्क्वायर, 4, a का मतलब 3 एंड c हैविंग 2। सो वी हैव टू फाइंड आउट -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस 25। ओके, 3 2 6, 4 4
24. So we have to get here 1. अब ये 1 जो आता है वो 1 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है? ऑब्वियसली ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन, क्योंकि हम कंसीडर करेंगे तो एक चीज भी होगी ना, क्योंकि यहाँ पे हम उसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा 0. तो 0 से ये b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1 आई है. तो 1 इज ग्रेटर देन 0. 1 is greater than 0. So we can say that it has two distinct root. मैंने अभी 3 कंडीशंस आपको बोली थी कि b स्क्वायर माइनस 4ac यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है then 2 real roots are there. तो इसके 2 real roots हमें यहाँ पे मिल सकते हैं. मतलब हम we are using same formulas for that, and x and y both we are using here. So x is considered here माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac. b स्क्वायर माइनस 4ac की तो वैल्यू हमने फाइंड कर दी है. अब सिर्फ b की वैल्यू हम रखेंगे माइनस b. b कितना है हमारे पास माइनस 5 इज देयर. माइनस इसका ऑलरेडी है ही. प्लस और माइनस हम क्या रखेंगे प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 1 मिल रही. तो 1 वी हैव टू यूज हियर एंड 2a की वैल्यू कितनी है 3. सो 2 into 3 इज देयर. अब आप उसका सिंप्लीफिकेशन कर दो. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5. एक बार प्लस और एक बार माइनस से हम कंसीडर करेंगे. 5 प्लस और माइनस 1 3 2 6. तो जब हम x इज इक्वल टू प्लस में यूज करेंगे तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 आएगा. और दूसरा जो रूट है वो x इज इक्वल टू हम माइनस की साइन यूज करेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस से ही फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनती है. तो एक बार मैंने प्लस ले लिया तो अब दूसरी बार हम क्या लेंगे माइनस लेंगे. तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 6. सो वी हैव टू डू आउट 4 डिवाइड बाय 6. तो एक वैल्यू यहाँ पे क्या है 6/6 का मतलब होता है 1, और एक 4/6 है मतलब 2 2 और 3. सो एक आई 1 मतलब x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2/3. तो कितने रूट्स मिले, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 था तो ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड 2 रियल रूट्स. एंड 2 रियल रूट्स का मतलब x इज इक्वल टू 1 आया, और दूसरा रूट्स हमारे लिए क्या कंसीडर होता है 2/3. तो ये हुआ आपका एग्जांपल नंबर 13 का फर्स्ट. ऐसे आपको रूट्स फाइंड करना है. पहले b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रख के आप उसकी वैल्यू फाइंड करो, और यू कैन पुट लाइक दैट. ऐसे भी कर सकते हो. सीधा 0 यहाँ पे रख दो, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है ये 0 रखो. मतलब यहाँ पे 1 कंसिडर होगा तो ये कोई भी कंसिडरेशन में यहाँ पे हम यूज करेंगे. अदरवाइज यू डायरेक्टली फाइंड आउट b स्क्वायर माइनस 4ac लाइक दैट. ओके, 1 फाइंड किया, देन यू हैव टू कंपेयर विद दैट. इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन वी हैव टू फाइंड आउट 2 रूट्स. यदि लेस देन 0 है तो ऑब्वियसली देयर आर नो एनी काइंड ऑफ द रूट्स. इक्वल है तो 2 इक्वल रूट्स हमें फाइंड करेंगे. ओके, तो ये तीनों कंडीशन और ये फॉर्मूला हमें याद रखें. तो अब एग्जांपल्स 13 के बाकी 2 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूँ कि राइट डाउन द एग्जांपल 13 के बाकी 2 सेकंड एंड थर्ड आपको होमवर्क में करना है. ओके, सो एग्जांपल नंबर 13 is must be over here. Example number 14 के ऊपर चलते हैं. Example 14 is suggesting that find the roots of the following equations. आपको ये बताया गया है कि कोई भी रूट्स को आप कैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर से कैसे रूट फाइंड करते हो. अभी एक मेथड तो हमने यहाँ पे देख ली, वही मेथड्स हम आगे बढ़ाएंगे. कैसे करेंगे, जस्ट वी हैव टू यूज हियर. ओके, so first of all
just before I remove everything, you just check it out that how this particular example number 13 का first मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और second and third that will be a part of your today's homework. So let us move on to the example number 14 का first quadratic equation ऐसा है कि find out the roots of it. X plus 1 upon x is equal to 3 where x is not equal to 0. जहाँ पे x 0 नहीं है, अदरवाइज x plus 1 is equal to 3 हो जाता, और x यहाँ पे 0 हो गया तो a 0 हो गया. आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्मूला और डेफिनेशंस में मैंने बताया था कि कभी a b c इसमें a और b कभी 0 नहीं होता, तो यहाँ पे x 0 नहीं है. दैट कंडीशंस इज गिवन, दैट्स व्हाई वी स्टार्ट्स ओवर दैट. फर्स्ट वी हैव टू मेक द परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, और नीचे यहाँ पे x है ही, और वी हैव टू गॉट 3. वो x वहां पे चला जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3x. देयरफॉर हम 3x को इस साइड ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे लिए बन गया पहला. अब हम उसके ऊपर से हमें पता है कि क्या करना है, हम कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट नहीं है. b इज इक्वल टू क्या रहेगा, -3, और c इज इक्वल टू हमें क्या कंसीडर करना है, 1. इज इट ओके? अब हम कंपेयर करेंगे, मैंने बोला कि b स्क्वायर माइनस 4ac को हम फाइंड करेंगे, और b स्क्वायर माइनस 4ac को कंसीडर करें तो हम क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac. b क्या है, -3 का स्क्वायर माइनस 4. a की जगह पे हम 1 रखेंगे, c की जगह पर हमारा 1 है. -3 का स्क्वायर होता है 9 -4, so we got here 5. Okay, so if we have to got 5, then it is also be greater than 0. So this is also having the 0. b square minus 4ac, so it has 5, and 5 is greater than 0. So obviously we can say that it has the two distinct real roots. तो अब कैसे हम यूज करेंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट हमें फाइंड करना है. तो जस्ट वी हैव टू पुट दिस फॉर्मूला. यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, हम सीधा उसके ऊपर हम यूज करेंगे. तो वी पुट इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे लिए है वो -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, एंड देन वी हैव टू यूज हियर द नेक्स्ट पोर्शन. So b square minus 4ac upon 2a. So just we have to get here. First we have to put minus b. मतलब b हमारा माइनस है तो -3. Just we have to put प्लस और माइनस. ये अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है. So we have to put into the under root 5. And last one 2 into 1. 1a मतलब कितना है, 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 होगा. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रूट हमें मिल ही सकता है, जैसे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक मिलता है 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, और दूसरा मिलता है x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2. दिस इज योर आंसर. इट्स वेरी इजी थिंग. तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ. That is very easy for you. So let us move on to the another points. Before that, we are using that example number 14. बाकी जो क्वेश्चन है, example number 14 के बाकी एक ही रोमन से second one. Just you have to perform as a homework. Okay. So we directly go for the example exercise number 4.3 here. Okay. So example 14 and example 15, ये आपको जितना भी कंसीडर हो सके इतना कर सकते हो तो कर. ओके. तो example 13,
जिसके दो क्वेश्चन, एग्जाम्पल 14 के दो एंड एग्जाम्पल 15, यदि वो गिनना न आए तो मैं यहाँ पे 4.3 स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 4.3 में जितने पोर्शन है वो आपको कवर करना है। ओके, सो जस्ट यू हैव टू चेक इट आउट दिस थिंग्स अगेन। So let us move on to the exercise 4.3. In 4.3, question number 1 is not a part of the syllabus. That's why we have not concluded this time. So we have to continue with the question number 2. That is also be easy. Whatever we discussed into the examples, same things we are using in question number 2. But question number 2 is suggesting finding the roots from the question number 1. Whatever the quadratic equation given in question number 1, जितने भी question number 1 में दिए टेक्स्ट बुक में, जो अभी यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम कंसीडर नहीं कर रहे, उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, जो इस बार इस साल एग्जाम्स में इंक्लूड नहीं किए, तो हम उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यूज कर ही सकते हैं ना, बिकॉज ऑफ we are doing for the find the roots from this methods. So first of all question is that question number 2 का first जो question number 1 में से लिया 2x square minus 7x plus 3 is equal to 0, that is one quadratic equation. Okay, so find out the roots of it. So before that we have to start like a is equal to, यहाँ पे हम start कर देते a कितना है 2 है, b is equal to कितना है -7 and c is equal to कितना है 3. So just we have to use, therefore b square minus 4ac is equal to, हम क्या करेंगे पहले ही उसको करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से यूज करेंगे, तो b square is equal to that way. तो करस्पॉन्डिंग मतलब हमें पता है पहले से ही कि हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ax square plus bx plus c is equal to 0. अब मुझे हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है किसके साथ कंपेयर करने से हमें वैल्यू मिलती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसमें a कितना है तो इसके साथ कंपेयर करो तो a की वैल्यू मिल जाती है 2, b की वैल्यू -7 एंड c की इज इक्वल टू 3. नाउ वी पुट इन b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4, a मतलब 2 एंड c इज 3. So -7 मतलब 49 is there. 3 2s are 6, 6 4s are 24. 4 2s are 8 or 8 3s are 24. So we have to got 5 is there. 9 में से 4 गया तो 5 and 2. मतलब we have to got here the 25 is there. And 25 is greater than or equal to 0 होता है ना, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं b square minus 4ac is greater than or equal to, हम कंसिडर किसके साथ कर सकते हैं 25 के साथ. अब 25 है वो कौन सा पोर्शन आया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आता है. तो हम इस कंडीशंस को हम कैसे रखेंगे, सो b square minus 4ac is greater than or equal to या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो क्या कंडीशंस हमने देखी थी पहले बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, देन वी कैन से दैट इट हैज द टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आर देयर. तो हम उसके दो रियल रूट्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, और फॉर्मूला हमें पता है कि माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज द quadratic formula. So just we have to use same thing, b here using the b and that b plus or minus under root b square minus 4ac and then we have to get 2a. अब हम x को कंसीडर करें, यहाँ पे 2 रूट्स फाइंड करने, तो इसमें हम रखेंगे b की वैल्यू कितनी है -7, क्योंकि -7 है और माइनस यहाँ पे है ही, तो माइनस इन द ब्रैकेट -7 प्लस यहाँ प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पे 25, तो अंडर रूट में हम रखेंगे. देन आफ्टर वी आर यूजिंग 2
एंड ए की वैल्यू कितनी है 2. ओके, सो वी हैव टू गॉट -7, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी 7 बचेगा. प्लस और माइनस अंडर रूट 25 का रूट निकल जाने के बाद क्या पोर्शन रखता है 5, और नीचे हमारे पास क्या है 2 into 2 4. तो एक x की वैल्यू आप देख सकते हो कि एक हम रख सकते हैं 7 + 5 डिवाइड बाय 4, और दूसरा हम रख सकते हैं x = 7 - 5 डिवाइड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस और माइनस यूज कर रहे हैं, यानी कंबाइन ऐसा पोर्शन होता है. यदि उसके 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो हम 2 पार्ट्स में यूज करेंगे, प्लस और माइनस. 7 + 5 कितना होता है 12 डिवाइड बाय 4. 12 डिवाइड बाय 4 का मतलब होता है ऑब्वियसली 3. तो एक वैल्यू x की 3 आई. सिमिलर वे x = 2/2, सो वी हैव टू गॉट 1. तो एक वैल्यू आई x = 3 और दूसरी आई x = 1. आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ये 3 और 1 यहाँ पे रख के ये 0 फाइंड कर सकते हो, वेरिफिकेशंस भी कर सकते हो. सो यू कैन also be doing like that. 1 रख के आप कर तो यहाँ पे हो जाता है 2 -7 + 3, मतलब 2 + 3 माइनस कितना होता है 7. सो 3 यहाँ पे हम यूज करेंगे. 3 का स्क्वायर कितना होता है 9. 9 2 * 8, 3 7 * 21. यहाँ पे हमारा 18 और 21 आया. 18 + 3 कितना 21 गया तो 0 आ गया. तो ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो. यू कैन पुट दिस डायरेक्टली x = 3 और x = 1 into the value of this quadratic equation. तो ये सभी चीज बहुत इजी है मेरे ख्याल से, कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम कितने भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यूज करके कर सकते हैं. ओके, तो आई होप सो दैट दिस क्वेश्चंस के बाकी रिमेन्स क्वेश्चन है वो आप कर सकोगे. सो क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी सब फ्रॉम सेकंड रोमन से लेके जितने भी रोमन्स यहाँ पे यूज करते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, टुडे यू हैव टू वर्क ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. इज इट ओके? तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम खत्म करते हैं. एंड फिर भी इसमें कोई क्वेरी आपको आ रही है तो मुझे आप बोल सकते हो, बिकॉज ऑफ इट्स अ वेरी इजी थिंग्स. आप पॉलिनोमियल से सीख के आए हैं तो ये सब चीज तो आपके लिए बड़ी इजी रहेगी. बट इफ यू हैविंग एनी काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम, दैट जस्ट टू शेयर. नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 के. क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कंसीडर नहीं किया, क्वेश्चन 2 अभी कंसीडर किया. उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सॉल्व किया. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 का. आज का होमवर्क आप देख लो फिर से. एग्जाम्पल 13 का सेकंड, थर्ड, एग्जाम्पल 14 का सेकंड, एंड एग्जाम्पल 15 पूरा, एंड देन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ भी आज आपको कंप्लीट करना है. तो आई होप सो दैट you understood very well. We discussed remaining portion of the 4.3 and 4.4 that we have to cover next lecture, means tomorrow. I hope so that everyone just understood whatever the portions is not a part of this chapter, but you have to try that whatever the things you have to not understand from the any points of this particular chapter, then you have to go and work hard on it. Okay, most probable on the supplementary our summative assessment exam is up to held at the end of this month. So we observe that we have to conclude one more unit because of one more lectures is required for completing this unit. Then after we go for the unit number 8, that is related with the trigonometry, and from the trigonometry whatever the portion is going on, that we included in our syllabus. So up to this, all these things we have to try, but if we are not taking all these points of the unit number 8, then whatever the portion is going, that will be asked into your examination. Thank you very much for being with us.
We will meet next day. Tomorrow we will meet again with the exercise 4.3 and 4.4. Thank you very much. Have a nice day.